آپ کو مجھے طلاق دینی ہوگی ماہر لالا، ورنہ میں سب کو بتاؤں گی کہ آپ نامرد ہیں۔ وہ بے باکی سے بولی تو ماہر کا دماغ گھوم گیا۔ وہ ماہر سے 12 سال چھوٹی تھی، شادی ایمرجنسی میں بے جوڑ ہوئی تھی، اسی لیے ماہر اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ اگر آپ نے طلاق نہ دی تو… وہ غصے میں بولتے بھول گئی تھی کہ اس کے سامنے گاؤں کا سردار تھا۔ اب تک وہ بہن بن کر ماہر سے نخرے اٹھواتی آئی تھی، پر اب اس کی غیرت تھی۔ میں تمہیں کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑوں گا، غصے سے کہتے ماہر نے اسے بیڈ پر دھکا دیا اور ہیر دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، مگر گھر میں کسی کو بھی اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ اس حویلی کے سارے ہی مکین بے رحم ہو گئے تھے۔ کوئی بھی ہیر کی دلی حالت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہاں ہر کسی کے نزدیک ہیر صرف ایک بے جان گڑیا تھی، جس پر سب لوگ اپنی مرضی مسلط کر رہے تھے۔ ماما بابا میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ میری شادی ماہر لالا سے کیسے کر سکتے ہیں؟ ہیر نے اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھتے روتے ہوئے کہا تھا۔ مہرین بیگم نے ایک نظر خوف سے بیٹی کی طرف دیکھا، جس کی ضد کی وجہ سے آج اسے یہ دن دیکھنا پڑ رہا تھا۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے ہیر۔ اگر تم ہماری محبت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاتی تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے تم پر بھروسہ کیا تھا، سب لوگوں کی مخالفت لے کر تمہیں پڑھنے کے لیے شہر بھیجا تھا، مگر وہاں جا کر تم نے ہماری ہی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ تمہیں ایک پل کے لیے بھی اپنے ماں باپ کا خیال نہیں آیا تھا۔ مہرین بیگم اس وقت ہیر سے سخت ناراض تھی، اسی لیے اسے باتیں سنا دی۔ ہیر لب بھینچ کر رہ گئی۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ سے میری ہر خواہش کو پورا کیا ہے، کبھی مجھے کسی چیز کے لیے انکار نہیں کیا تھا، مگر آج جب میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لینے کی باری آئی ہے تو آپ لوگوں نے میری زندگی برباد کر دی۔ آپ لوگوں نے اتنا بڑا فیصلہ لیتے مجھ سے پوچھنا تو دور کی بات، مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ ہیر کا سارا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ اس کے وہی ماں باپ تھے جو اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اس کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے سب کچھ کرتے تھے؟ آج وہی ماں باپ اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی برباد کر رہے تھے، اور اسے رونے کا حق بھی نہیں دیا گیا تھا۔ ماما میں نے کچھ غلط نہیں کیا، کسی کو پسند کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، مگر آپ لوگوں نے اس کو میرا گناہ بنا دیا، اور سزا کے طور پر میری شادی آپ لوگ ماہر لالا سے کر رہے ہیں۔ ان سے شادی کرنے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر آپ لوگوں کو مجھ پر رحم نہیں آ رہا۔ آپ لوگوں کو اپنے خاندان اور برادری میں اپنی ناک اونچی رکھنی ہے، بھلے آپ کی بیٹی مر جائے، مگر آپ لوگوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہیر کی حالت اس وقت ایسی تھی جیسے کوئی لٹی پٹی کشتی گہرائی میں ڈوبتی جا رہی ہو اور سب کھڑے تماشا دیکھ رہے ہوں۔ مہرین بیگم نے ہیر کی بات سن کر سر دا بھری۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ہیر کو نہیں سمجھا سکتی۔ اس وقت ہیر کے سر پر محبت کا بھوت سوار تھا۔ ہیر، یہ فیصلہ تمہارے بابا کا ہے، اب تمہیں ہر حال میں ان کے فیصلے کے سامنے سر جھکانا ہی ہوگا۔ کچھ دیر میں نکاح خواہ آ رہا ہے، تم شرافت سے اس نکاح کے لیے حامی بھر لینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مہرین بیگم نے ہیر کا بازو سختی سے پکڑتے اسے دھمکایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہیر اتنی آسانی سے ان کے قابو میں آنے والی نہیں ہے۔ ہیر نے زخمی نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جن کو اس کی ٹوٹی بکھری حالت پر رحم نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس وقت اپنی حویلی کی عزت کی پڑی تھی۔ بیٹی کے دل پر کیا گزر رہی تھی وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی۔ تمہاری شادی ماہر سے ہو رہی ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں بہت اچھے سے بٹھا لو۔ آئندہ تمہاری زبان سے میں نے اس لڑکے کا نام سنا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مہرین بیگم نے ہیر کے بازو کو سختی سے جھٹکا دیا۔ ہیر کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔
महरीन बेगम बहुत तैश के आलम में हीर से कह रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हीर कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी करे जिसका खमियाजा उसे उम्र भर भुगतना पड़े। इसीलिए वो उस पर सख्ती कर रही थी। लेकिन मामा, मैं माहिर लाला से शादी नहीं कर सकती। मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। आप लोग मेरे साथ ये जुल्म मत करें। ठीक है, आप लोगों को मेरी शादी मेरी पसंद से नहीं करनी तो ना करें, मगर माहिर लाला से भी मेरी शादी मत करें। हीर ने रोते हुए अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ दिए थे, मगर आज महरीन बेगम अपनी बेटी पर तरस खाने को तैयार नहीं थी। वो पहले ही अपने बेजा लाड प्यार का नतीजा देख चुकी थी। अब मजीद हीर की कोई बेवकूफ़ी की वजह से उसका और इस हवेली का नुकसान नहीं करना चाहती थी। हीर, अपने आंसू साफ करो और अपना हुलिया दुरुस्त करो। अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अगर तुमने आज इस निकाह से इनकार किया तो समझ लेना कि तुम्हारे माँ बाप हमेशा के लिए मर चुके हैं। महरीन बेगम ने सख्त लहजे में हीर से कहा और फिर वो कमरे से निकलकर जा चुकी थी। हीर अपनी जगह पर शल सी खड़ी रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपनी माँ का सख्त लहजा सुनना पड़ेगा। उनकी आंखों में अपने लिए बेगानगी देखनी पड़ेगी। आज हीर के लिए उसके सारे रिश्ते खत्म हो गए थे। कुछ देर बाद निकाह ख्वां के साथ दिलावर साहब और बुराक साहब हीर के कमरे में आए। महरीन बेगम और सादिया बेगम पहले ही हीर के कमरे में मौजूद थीं। हीर सोफे पर किसी बेजान लाश की मानंद बैठी थी। उसके चेहरे पर घूंघट डाला हुआ था, इसीलिए कोई भी हीर के आंसू नहीं देख सकता था। दिलावर साहब ने महरीन बेगम को देखा। महरीन बेगम ने उन्हें मुतमईन रहने का इशारा किया। कुछ रिश्तेदार औरतें भी कमरे में जमा हो गई थीं। क्या आपको माहिर बुराक से बेवस 50 लाख रुपए हक महर ये निकाह कबूल है? निकाह ख्वां की आवाज़ हीर के कानों में गूंजी। हीर ने अजियत से अपनी आंखें मींच ली थीं। उसने घूंघट की आड़ से अपने माँ बाप को देखा जो उससे बिल्कुल अनजान बने वहां खड़े थे। हीर को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर छुरियां चला दी हों। कबूल है, हीर की भीगी हुई आवाज़ आई। फिर उसने 3 बार कबूल है कहकर माहिर के साथ अपने रिश्ते के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। वो रिश्ता जो हर रिश्ते से मजबूत था। हीर माहिर के साथ उस रिश्ते में बन चुकी थी। सब लोग एक दूसरे से गले मिलते हुए मुबारकबाद दे रहे थे। हीर के सर पर हाथ रख रहे थे, मगर हीर पत्थर का मुजस्मा बन गई थी। दिलावर साहब ने आगे बढ़कर अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा था, मगर हीर को उनका हाथ किसी जलते हुए अंगारे की मानंद महसूस हुआ था। कमरे से सब लोग जा चुके थे। हवेली के लॉन में निकाह की तकरीब रखी गई थी। अब वहां स्टेज पर माहिर का निकाह हो रहा था, जबकि अपने कमरे में बैठी हीर का दिल खाली खाली सा हो गया। महरीन बेगम ने आगे बढ़कर अपनी इकलौती बेटी को गले लगाने की कोशिश की, मगर हीर 2 कदम दूर हो गई थी। महरीन बेगम अफसोस से अपनी जिद्दी बेटी को देखकर रह गई। कुछ देर बाद हीर को लाकर माहिर के बराबर में बिठा दिया गया। हीर के आंसू अब रुक चुके थे और उसकी आंखें बिल्कुल खुश्क थीं। वो फूलों से सजे स्टेज पर सर झुकाए बैठी हुई थी। हर तरफ रंगो बू का सैलाब था। उन दोनों के निकाह पर हर कोई खुश था, मगर हीर का दिल बिल्कुल खाली था। कुछ देर बाद रुखसती की रस्म भी अदा कर दी गई और हीर रुखसत होकर उसी घर में आ गई जहां वो रह रही थी। बस फर्क इतना था कि हीर अपने कमरे से माहिर के कमरे में चली गई थी। माहिर का कमरा ऊपरी मंजिल पर था। हीर माहिर के कमरे में उसके बेड पर बैठी हुई थी। पूरा कमरा सुर्ख गुलाबों और मोतिये की खुशबू से महक रहा था। हीर साकित सी माहिर के कमरे में मौजूद थी। वो नहीं जानती थी कि उसे आगे क्या करना चाहिए। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और माहिर कमरे में आया। उसने एक नज़र बेड पर सुकड़ी सिमटी सी बैठी हीर की तरफ देखा। वो जानता था कि यह निकाह बहुत जल्दी में हुआ है, इसीलिए वो
हीर पर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। वो हीर को कुछ वक्त देना चाहता था। ये निकाह माहिर के लिए भी अचानक ही हुआ था। उसने तो हीर को हमेशा अपनी छोटी बहन समझा था, क्योंकि हीर और उसकी उम्र में काफी फर्क था। हीर उससे 12 साल छोटी थी, इसीलिए माहिर ने हमेशा उसके नखरे उठाए थे। मगर आज उसकी बीवी के रूप में उसके कमरे में मौजूद थी। उसे हीर से निकाह करने पर कोई एतराज नहीं था, मगर वो जानता था कि हीर के लिए ये निकाह बहुत गैर मुतवक्को है। वो इतनी जल्दी इस निकाह को कबूल नहीं करेगी, इसीलिए वो जबरदस्ती इस रिश्ते को हीर के सर पर मुसल्लत नहीं करना चाहता था। वो हीर के सामने बेड पर बैठ गया। हीर का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। उसका झुका हुआ सर मजीद झुक गया। माहिर ने अपनी जेब से एक मखमली केस निकाला। उसमें सोने के बेहद खूबसूरत कंगन थे। माहिर ने हीर का हाथ थामकर वो दोनों हसीन कंगन उसकी खूबसूरत कलाइयों की जीनत बना दिए। हीर के हाथ कांप रहे थे। माहिर ने गौर से उसके कांपते हुए हाथों की तरफ देखा। वो हीर की दिली हालत को बखूबी समझ सकता था। चुलबुली और शरारती सी हीर आज उसके सामने बिल्कुल खामोश और सहमी हुई सी बैठी हुई थी। जाकर फ्रेश हो जाओ। इतना भारी जोड़ा पहनकर कब से बैठी हो? अब तक तुम थक गई होगी। माहिर ने माहौल में छाई सर्द महरी को कम करने की कोशिश की और हल्के फुल्के लहजे में हीर से मुखातिब हुआ, मगर हीर के हाथ अब भी कांप रहे थे। माहिर ने नरमी से उसके हाथों को थामा। हीर के पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया। उसने एक झटके से माहिर के हाथों की नरम गिरफ्त से अपना हाथ निकाला और बेड से उठकर खड़ी हो गई। अलमारी में से अपने कपड़े निकालकर वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। माहिर सर हिला कर रह गया। कुछ देर बाद वो बाहर आई तो माहिर बेड पर नीम दराज था। हीर बेड पर से अपना तकिया उठाकर सोफे की तरफ बढ़ गई। माहिर ने हैरानी से ये मंजर देखा, मगर हीर ने माहिर को यकसर फरामोश कर दिया था। माहिर एक ठंडी सांस भरता हुआ अपनी जगह से खड़ा हुआ, फिर वो भी फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। हीर अपनी आंखों पर हाथ रखे सो चुकी थी। माहिर ने उसे सोने दिया। वो समझ सकता था कि अभी हीर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सब कुछ बहुत अचानक और जल्दी में हुआ था। दोनों को ही कुछ भी समझने का मौका नहीं मिल सका था। मगर अब जब उन दोनों का निकाह हो ही गया था तो माहिर इस रिश्ते को दिल से निभाना चाहता था। माहिर को इस बारे में कुछ पता नहीं था कि वो किसी और को पसंद करती है, इसीलिए वो हीर की गुरेज को उसकी शर्म और झिझक समझ रहा था। सुबह माहिर की आंख खुली तो हीर कमरे में मौजूद नहीं थी। माहिर भी फ्रेश होकर नीचे आ गया। सब लोग नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। माहिर जाकर हीर के बराबर में बैठ गया। हीर खामोशी से नाश्ता करती रही। महरीन बेगम की नजरें बार बार हीर के चेहरे की तरफ थीं, मगर आज वो कुछ भी अंदाजा लगाने से कासिर थीं। हीर का चेहरा हर तासुर से आरी था। वो सर झुकाए बैठी प्लेट को घोर रही थी। उसने बमुश्किल 1-2 नवाले ही लिए होंगे। माहिर भी संजीदगी से बैठा नाश्ता कर रहा था, वही संजीदगी जो हमेशा से उसकी शख्सियत का खासा रही थी। इसलिए महरीन बेगम उन दोनों के चेहरों से कुछ भी पता न लगा सकी कि कल रात उन दोनों के दरमियान सब ठीक रहा था या नहीं, क्योंकि इस शादी पर कितना वावेला हीर कर रही थी, उससे कुछ बैद नहीं थी कि वो कुछ उल्टा सीधा कर देती। नाश्ते से फारिग होकर हीर वापस अपने कमरे में आ गई। माहिर अपने काम से निकल गया। रात को वलीमे की तैयारी की जा रही थी। महरीन बेगम हीर के कमरे में गई तो हीर कमरे में अंधेरा किए बैठी थी। उसका सर बुरी तरह दुख रहा था। महरीन बेगम ने कमरे में दाखिल होते कमरे की लाइट खोल दी। महरीन ने बेजारी से अपनी मां की तरफ देखा। हीर, तुम यहां क्या कर रही हो? अब तुम्हें माहिर के कमरे में होना चाहिए। अब वही तुम्हारा कमरा है। क्यों तुम सबको बोलने का मौका दे रही हो? महरीन बेगम ने हीर को अपने कमरे में देखकर सर पकड़ लिया। जो ये लोग चाहते थे
वो तो हो गया, तो अब क्यों मेरे सर पर सवार हैं? क्या मैं 2 लम्हे सुकून से बैठ भी नहीं सकती? हीर ने चिढ़ते हुए कहा। नरीन बेगम ने अफसोस से अपनी बेटी को देखा, जिसमें बड़े छोटे का हर लिहाज खत्म हो गया था। हीर, ये सब कुछ जो हुआ है तुम्हारे भले के लिए हुआ है, इसलिए अब इस शादी पर सोग मनाना छोड़ दो और उठो, वलीमे के लिए तैयार होना है। नरीन बेगम भी समझ गई थी कि हीर आसानी से उनके काबू में नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने भी दुरुस्त लहजे में कहा। हीर किलस कर रह गई। और हाँ, अगर तुमने माहिर के साथ कोई बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नरीन बेगम ने कमरे से निकलने से पहले हीर को धमकी दी थी और उसे जल्द तैयार होने का कहकर कमरे से निकल गई। हीर अपना सर थाम कर रह गई। हल्के गुलाबी रंग की पैरों को छूती मैक्सी पहने वो बेहद हसीन लग रही थी, मगर बिल्कुल खामोश बैठी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान का शायबा तक नहीं था। माहिर ने गहरी नजरों से हीर की तरफ देखा। निकाह होने के बाद हीर के लिए उसके जज्बात भी बदल गए थे। उसने हीर को अपने दिल में जगह दे दी थी। वलीमे की तकरीब भी बखैर आफियत निमट गई। माहिर अपने कमरे में गया तो हीर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। उसने अपना दुपट्टा उतार कर बेड पर रखा हुआ था और इस वक्त अपने बालों में उलझी हुई थी। माहिर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और हीर की पुश्त पर जाकर खड़ा हो गया। अपने बालों से उलझते हुए हीर के हाथ यकदम ही थमे थे। चेहरे के उलझन भरे तासुरात में यकदम ही सर्द मेहरी उभरी, मगर माहिर पहचान नहीं सका कि वो अपनी आंखों में मोहब्बत लिए हीर को देख रहा था। माहिर ने हीर के बालों में फंसी हुई पिनें निकालकर उसके हाथ में थमाई। हीर अपना सांस तक रोक गई। उसके सारे बाल एक झटके से खुलकर उसके शानों पर बिखर गए थे। माहिर ने अपनी पोरों से छूकर हीर के बालों की नरमी को महसूस किया। हीर कांप कर रह गई। तुम आज बेहद खूबसूरत लग रही थी, मेरी नजर तुम्हारे चेहरे से हट नहीं रही थी। माहिर ने हीर के कान के पास झुकते भारी लहजे में सरगोशी की। फिर माहिर ने उसे शानों से थाम कर अपने करीब करना चाहा, मगर हीर एक झटके से उसे दूर हटी। माहिर ने हैरानी से उसे देखा। वो समझ सकता था कि अभी हीर इस रिश्ते के लिए राजी नहीं, मगर जब वो उसकी जानिब कदम बढ़ा रहा था तो उसका ये गुरेज उसे समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत थकी हुई हूं, अब सोना चाहती हूं, हीर ने माहिर की तरफ देखे बगैर उससे कहा और फिर अपना दुपट्टा बेड से उठाकर माहिर के बराबर में से निकलकर चली गई। माहिर अपनी आंखों में हैरत और उलझन भरे उसे जाता देखता रहा। फिर वो एक ठंडी सांस भरकर अपने बालों में हाथ फेर कर रह गया। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। हीर माहिर से दूर दूर रह रही थी। माहिर को उसका ये रवैया समझ नहीं आ रहा था। उसने हीर को इस रिश्ते को समझने के लिए काफी वक्त भी दे दिया था, मगर हीर का गुरेज अब भी बरकरार था। माहिर जब रात को सो जाता तो हीर कमरे में आती और आकर खामोशी से सोफे पर लेट जाती और फिर सुबह ही कमरे से निकल जाती थी। माहिर की बर्दाश्त भी अब जवाब दे रही थी। हीर उससे 12 साल छोटी थी। वो इसी बात का लिहाज करके उसे वक्त दे रहा था, मगर अब पानी सर से ऊंचा होता जा रहा था। हीर अपने और उसके रिश्ते को मजबूत करने के बजाय उससे मजीद दूरियां बढ़ा रही थी, और ये बात माहिर को मंजूर नहीं थी। जब वो इस रिश्ते को दिल से कबूल कर चुका था तो हीर क्यों उससे गुरेज बरत रही थी। आज माहिर ने हीर से 2 टोक बात करने का फैसला कर लिया। वो समझ रहा था कि हीर अब तक उससे झिझक रही है। माहिर के तो वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि वो उससे शादी ही नहीं करना चाहती थी और वो किसी और को पसंद करती थी। खाने से फारिग होकर माहिर अपने कमरे में आ गया। आज उसने इरादा कर लिया था कि वो इस मामले में हीर से बात करके ही रहेगा। माहिर अपना लैपटॉप उठाए सोफे पर आ गया। काफी देर बाद हीर ये सोचकर कमरे में दाखिल हुई थी कि माहिर अब तक सो चुका होगा, मगर जब वो कमरे में आई तो माहिर ना सिर्फ जाग रहा था बल्कि उसी सोफे पर बैठा था
जहां हीर सोती थी। हीर ने उलझ कर माहिर को देखा। हीर को देखकर माहिर अपना लैपटॉप बंद करके उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हीर खामोशी से माहिर को देख रही थी। हीर, हमारी शादी को 1 माह होने वाला है। समझ सकता हूं कि हमारी शादी अचानक हुई थी, मगर 1 माह काफी होता है किसी भी रिश्ते को समझने के लिए। माहिर के नरम लहजे में हीर के चेहरे का अहाता करते उससे कहा। हीर को लगा कि वो सांस नहीं ले सकेगी। वो जिस बात से बचती आ रही थी, आज वही बात उसके सामने खड़ी थी। मेरे सर में दर्द है, मैं सोना चाहती हूं। हीर ने उसकी बात को नजरअंदाज करना चाहा, मगर शायद आज माहिर भी सारे हिसाब किताब पूरे करने के लिए तैयार बैठा था। उसने हीर को शानों से नरमी से थाम लिया। आज जब तक मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे नहीं मिलेंगे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। माहिर ने उसकी आंखों में झांकते हुए नरमी से कहा, मगर उसके लफ्जों की सख्ती हीर को बखूबी महसूस हुई थी। मुझे छोड़ें। हीर ने खुद को माहिर की मजबूत गिरफ्त से छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। हीर, हम लोग आराम से बात भी कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, सिर्फ अपने सवालों के जवाब लेना चाहता हूं। माहिर ने अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत करते हुए कहा। हीर ने कोफ्त और बेजारी से उसे देखा। पल भर में ही उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इस वक्त हीर ने खुद को बेहद बेबस महसूस किया। इतने दिनों से जो गुबार उसके अंदर जमा हो रहा था, वो अब बाहर निकलने को बेताब था। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। ये शादी जबरदस्ती हुई है। मैंने मामा बाबा को इनकार किया था कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी, मगर फिर भी उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी आपसे कर दी। हीर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। माहिर उसकी बात सुनकर साकित हुआ था। उसकी गिरफ्त हीर के शानों पर ढीली हुई। हीर एक झटके से उससे दूर हुई। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी और ना ही मैं आपके साथ रहना चाहती हूं, इसलिए बेहतर है कि हम दोनों ये रिश्ता खत्म कर दें। हीर ने माहिर की आंखों में बेखौफ होकर देखते हुए कहा। माहिर शल सा खड़ा हीर को देख रहा था। हीर, माना हमारी शादी अचानक हुई है, मगर अब तुम्हें इस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले लो। माहिर ने बात बिगड़ती देखी तो बात संभालने के लिए कहा। हीर तो हत्थे से उखड़ चुकी थी। मैं आपको पसंद नहीं करती और ना ही आपके साथ रहना चाहती हूं। मैं किसी और को पसंद करती हूं और उसी से शादी करना चाहती थी, मगर जब मामा बाबा को ये बात पता चली तो उन्होंने मेरी शादी आपसे करवा दी। मैं इनकार करती रह गई, मगर उन लोगों ने मेरे इनकार को कोई अहमियत नहीं दी। ये कहते हुए हीर फूट फूट कर रोने लगी, जबकि माहिर साकित सा उसे देख रहा था। उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने तो कभी इस नहज पर सोचा तक नहीं था कि हीर उस लिए इससे गुरेज बरत रही है। उन दोनों के दरमियान कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। माहिर की साकित आंखें हीर पर मुंजमद थीं। वो तो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहा था। हीर ने उसे पल भर में ही आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया था। फिर जब उसे सारी बात समझ आई तो माहिर ने बेख्तियार ही ठंडा सांस भरा और खुद को कंपोज करना चाहा। हीर ने माहिर की जबान छीन ली थी। माहिर के अंदर बाहर आग के गोले से बरसने लगे। बेयकीनी ही बेयकीनी थी। वो हारी हुई नजरों से हीर को देख रहा था। निकाह के बाद हीर के लिए माहिर की मोहब्बत बढ़ गई थी, मगर अब वो अपनी उसी मोहब्बत के हाथों ख्वार हो रहा था। वो 1 माह से अपनी बीवी की नजरअंदाजी बर्दाश्त कर रहा था और अब तो उसकी बीवी उसके सामने खड़े होकर किसी और से मोहब्बत करने का दावा कर रही थी। हीर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो। यकदम ही माहिर को होश आया और साथ ही उसका गुस्सा भी औद कर आ गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि हीर उससे इस तरह की कोई बात कर सकती है। माहिर ने हीर का बाजू सख्ती से दबोचा। कुछ देर पहले वाली नरमी उसके लहजे से और उसके लम्स से मफकूद हो गई थी।
गुस्से की शिद्दत से उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। हीर को उससे खौफ सा महसूस हुआ, मगर अब यहां तक आकर वो पीछे नहीं हट सकती थी। आपको मुझे तलाक देनी होगी, वरना मैं सबको ये बता दूंगी कि आप नामर्द हैं। हीर ने उसे धमकी दी। माहिर हीर की बेबाकी पर कितने ही लम्हे कुछ कह नहीं सका। हीर की धमकी सुनकर माहिर का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूं। अगर आपने मुझे सीधी तरह तलाक नहीं दी तो आप सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकती हूं। हीर ने खुद को माहिर की गिरफ्त से छुड़ाते हुए सख्ती से कहा था। माहिर को लगा अब वो कुछ कह नहीं सकेगा। जो लड़की उसके सामने खड़ी थी वो उससे 12 साल छोटी थी। वो हमेशा से इस लड़की के नाज नखरे उठाता आया था। आज वो उसके सामने खड़े होकर कितनी बेहयाई से उसे धमकी दे रही थी कि अगर उसने इसे तलाक ना दी तो वो सबको ये कह देगी कि वो नामर्द है। उसके मुंह से ये सब सुनकर माहिर चाहकर भी अपने गुस्से को काबू नहीं रख पा रहा था। हीर, तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो। तुम्हारे बारे में सोचकर मैं अब तक तुम्हारे करीब नहीं आया था और तुम मुझे नामर्दी का ताना दे रही हो। माहिर ने अब बेयकीनी से कहा। हीर नम आंखों से उसे देखती रही। अगर आप नहीं चाहते कि मैं ऐसा कुछ करूं तो खामोशी से मुझे तलाक दे दे। हीर ने खुद को मजबूत जाहिर करते हुए कहा। उसकी ढिठाई पर माहिर का दिमाग भप से उड़ा। माहिर उसे छोड़ता हुआ अपना सर थाम गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि हीर उसकी इस नरमी का नाजायज फायदा उठाएगी। कुछ देर तक वो अपनी पुश्त पर हाथ बांधे कमरे में टहलता रहा। वो किसी भी सूरत अपना गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका गुस्सा किसी भी तौर पर कम नहीं हो रहा था। वो जानता था अगर वो गुस्से में पागल हो गया तो सामने खड़ी इस लड़की का बुरा हशर कर देगा। फिर वो हीर के सामने आकर खड़ा हो गया। तुम जानती हो, गलती मेरी ही है। मुझे पहली ही रात तुम्हें इतनी छूट नहीं देनी चाहिए थी। शादी की रात ही तुम्हें तुम्हारी हैसियत और औकात अच्छे से बता देनी चाहिए थी। फिर आज तुम्हारी इतनी हिम्मत ना होती कि तुम मेरे ही सामने खड़े होकर मुझे नामर्द कहो। माहिर ने एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा। गुस्से से उसकी कनपट्टी की रगें फूल रही थीं। हीर की आंखों में नासमझी से उभरी। वो माहिर की बात का मतलब ना समझ सकी। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम सरदार माहिर बुराक के सामने खड़े होकर उसे नामर्दी का ताना दे रही हो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मर्द होता क्या है। तुमने मेरी अना को ललकारा है और ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। माहिर ने उसको बाजू से पकड़ते उसे झटका दिया। तुम क्या मुझे बेइज्जत करोगी? आज मैं तुम्हें खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। माहिर ने उसे एक झटके से बेड पर फेंकते हुए कहा। हीर औंधे मुंह बेड पर गिरी थी। मैं नहीं जानता था तुम मेरी नरमी को मेरी नामर्दी समझोगी। माहिर ने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा। हीर की रूह फना हो गई थी। वो शल से माहिर को देख रही थी। उसके लब अध खुले रह गए और पुतलियां साकिन थीं। उसने कभी माहिर का ये रूप नहीं देखा था। उसने तो हमेशा नरम गो सा माहिर देखा, मगर आज जाने माहिर का ये कौन सा रूप उसके सामने आ रहा था। माहिर ने अपनी शर्ट जमीन पर फेंकी और आगे बढ़कर हीर के वजूद से उसका दुपट्टा जुदा किया। तुम मुझे नामर्द कहोगी, मैं तुम्हें कुछ बोलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। माहिर ने एक टांग बेड पर रखते हीर के ऊपर झुकते हुए कहा था। हीर का पूरा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। उसने पहले माहिर को देखा और फिर दहशत से जमीन पर पड़े अपने दुपट्टे को देखा। उसके गले में गिल्टी सी उभर कर मासूम हुई थी। मुझे छोड़ दे, हीर ने रोते हुए माहिर से इल्तिजा की, मगर गुस्से की शिद्दत से माहिर का दिमाग माऊफ हो गया था। उसके सोचने समझने की सारी सलाहियतें सल्ब हो गई थीं। माहिर ने एक नज़र कमरे के बंद दरवाजे की जानिब देखा और फिर उठकर कमरे की लाइट बुझा दी। हीर ने बेड से उठने की कोशिश की थी, मगर माहिर ने उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में कैद कर लिया। हीर उसकी गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गई। माहिर ने उसे एक बार फिर से बेड पर धक्का दिया
اور اس کے اوپر جھک گیا۔ اب ہیر کو چیخنا، چلانا اور رونا دھونا کسی کام نہیں آنے والا تھا۔ وہ رات ہیر کے لیے بہت بھاری تھی اور اس سے اگلی صبح ماہر کے لیے بہت وزنی ہونے والی تھی۔ ماہر نے ہیر کا غرور، تکبر، انا سب خاک میں ملا دیا۔ غصے کے ہاتھوں اندھا ہو کر وہ اپنی ہی محبت کو تکلیف دے چکا تھا۔ ماہر کی آنکھ کھلی تو آج پہلی بار ہیر اسے صبح کے وقت کمرے میں دکھائی دی تھی۔ وہ ابھی تک گہری نیند میں تھی۔ ماہر نے افسوس سے اپنے برابر میں سوئی ہوئی اس لڑکی کو دیکھا جو اس کی روح میں بس چکی تھی اور وہ کسی اور سے محبت کی دعوے دار تھی۔ ماہر اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیڈ کے سرہانے سے ٹیک لگا لی۔ وہ اس وقت گہری سوچ میں غرق تھا۔ اسے کل رات کے لیے افسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے غصے پر بری طرح پچھتا رہا تھا۔ وہ اب تک اپنی بے خبری پر حیران تھا۔ ہیر کسی اور کو پسند کرتی تھی اور اسے علم ہی نہیں تھا۔ پھر وہ اٹھ کر فریش ہو کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ ہیر سے شرمندہ تھا اور اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے تو ہیر کو زندگی کی ہر خوشی دینے کا وعدہ کیا تھا، پھر وہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیسے کر سکتا تھا؟ سارا دن ماہر گھر سے باہر رہا۔ وہ شہر چلا آیا تھا۔ آج جانے کیوں اس کا گھر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اس کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ وہ اپنے کیے پر رہ رہ کر پچھتا رہا تھا۔ اگر ہیر اس سے محبت نہیں کرتی اور اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ سارا دن کام میں مصروف رہنے کے باوجود وہ خود کو لعنت ملامت کرتا رہا۔ آخر کار رات تک وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر ہیر ان دونوں کے درمیان قائم رشتے کے باوجود بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ اسے آزاد کر دے گا۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے اس کا دل بری طرح دکھا تھا۔ ہیر کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کمرے میں اکیلا پایا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ چند آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر تکیے میں جذب ہو گئے اور پھر وہ تکیے میں منہ دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بنا سوچے سمجھے ماہر کو نامرد بول گئی تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ماہر اسے اس بات کی اتنی بڑی سزا دیتا۔ ماہر 2 دن شہر میں تھا، وہ حویلی نہیں گیا۔ وہ اپنی ہی نظروں میں شرمندہ سا تھا۔ آخر کار 2 دن بعد وہ کچھ فیصلے کر کے حویلی گیا۔ جس وقت وہ حویلی پہنچا تھا رات ہر سو چھا گئی تھی۔ وہ آج 3 دن بعد حویلی آیا تھا، ورنہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ بغیر بتائے شہر گیا ہو۔ جس وقت وہ حویلی میں داخل ہوا سب لوگ ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ سامنے ہی وہ دشمنیں جاں بھی بیٹھی تھی۔ ماہر نے سب کو سلام کیا تو ماہر کی آواز سن کر ہیر ساکت بیٹھی رہ گئی۔ ماہر، تم 3 دن بعد آ رہے ہو بیٹا؟ اگر کوئی کام تھا تو بتا کر چلے جاتے، ہم سب بہت پریشان ہو گئے تھے۔ سعدیہ بیگم نے اپنے بیٹے سے شکایتی لہجے میں کہا، بس کچھ ضروری کام تھا اسی لیے مجھے جانا پڑ گیا۔ ماہر نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں کہا، اچھا چھوڑو سب کچھ اور بیٹھو کھانا کھاؤ، لگتا ہے 3 دن سے تم نے ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا۔ سعدیہ بیگم کی نظروں سے ماہر کی بکھری ہوئی حالت چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ مجھے ابھی بالکل بھی بھوک نہیں، بس مجھے ایک اچھی سی چائے بنوا دیں۔ ماہر نے اپنی ماں سے کہتے ہوئے ہیر کے جھکے ہوئے سر کی طرف دیکھا اور اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ہیر نے ایک بار بھی ماہر کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ہیر، جاؤ ماہر کے لیے چائے بنواؤ، مہرین بیگم نے ہیر سے کہا تو ہیر اپنے آنسو پیتے ہوئے خاموشی سے اٹھ گئی۔ وہ ماہر کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی مگر مجبوری تھی، اسے کمرے میں جانا ہی تھا۔ ہیر چائے بنا کر کمرے میں لے کر گئی تو کمرے میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ہیر کے قدم چند لمحوں کے لیے ڈگمگائے اور دل بڑی زور سے دھڑکا، مگر وہ خود میں ہمت پیدا کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئی تھیں۔
हीर ने बिना कोई भी आवाज किए चाय साइड टेबल पर रख दी और उसी तरह खामोशी से पलटने लगी थी जब यकदम ही माहिर ने हीर का हाथ थामा। हीर पूरी जान से लरस कर रह गई। माहिर उठकर बैठ गया और उसने हीर को अपने सामने बिठाया। मध्यम सी रोशनी में भी हीर का खौफजदा चेहरा माहिर की नजरों से छुपा नहीं था। माहिर चंद लम्हों तक सर झुकाए बैठा रहा। हीर की कलाई अब भी उसके हाथ में थी। उसने हीर की कलाई में वही कंगन देखे थे जो उसने मुंह दिखाई में दिए थे। माहिर के लबों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट बिखर गई। तुम जिससे मोहब्बत करती हो, अगर वो तुमसे शादी करने पर राजी है तो मुझे कोई एतराज नहीं, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। घर वालों की फिक्र करने की भी कोई जरूरत नहीं, मैं सारा इल्जाम खुद पर ले लूंगा। मगर मैं इससे पहले उस लड़के से एक बार मिलना चाहता हूं। माहिर ने सपाट से लहजे में हीर से कहा। हीर सब कुछ भूल भाल कर हैरानी से माहिर को देख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि माहिर उसे इतनी आसानी से छोड़ने पर राजी हो जाएगा। हीर को लगा कि वो कोई ख्वाब देख रही है। माहिर ने जिस नरमी से हीर का हाथ पकड़ा था वैसे ही छोड़ दिया। मैं अब कुछ देर सोना चाहता हूं, 3 रातों का जागा हुआ हूं, माहिर ने टूटे हुए लहजे में कहा और गरम गरम चाय अपने अंदर उंडेली। हीर वहां से खड़ी हो गई थी। तुम चाहो तो अपने कमरे में जा सकती हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, माहिर ने गनूदगी में जाते हुए कहा और फिर वो चंद लम्हों बाद ही होशो खिरत से बेगाना हो गया। उसकी भारी सांसों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। हीर ने अगले दिन ही हारून से राब्ता किया। हीर का फोन पहले ही महरीन बेगम ले चुकी थी, मगर इस बार हीर ने माहिर के फोन से हारून को फोन किया था। हारून, मैं तुमसे मिलना चाहती हूं, हीर ने अपने सामने बैठे माहिर को देखते हुए कहा। इतने अरसे बाद हीर की आवाज सुनकर हारून हैरान हुआ था। उसे इस बात पर भी शदीद हैरत हुई थी कि हीर शादीशुदा थी और अब भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी, बल्कि वो तो उससे मिलना भी चाहती थी। हारून के लबों पर एक पुरस्कार से मुस्कुराहट फैल गई। जब एक शादीशुदा लड़की खुद उसकी झोली में पके हुए फल की मानिंद गिर रही थी तो उसे क्या एतराज हो सकता था। वो तो पहले भी हीर से मोहब्बत नहीं करता था, महज उसके साथ वक्त गुजारी कर रहा था। जब हीर की शादी की खबर उस तक पहुंची, उसने अगले ही दिन अपने लिए एक नया शिकार ढूंढ लिया था। मगर अब हीर दोबारा से उसके पास वापस आ रही थी। जो काम उसका अधूरा रह गया था वो अब मुकम्मल करना चाहता था। उसने हीर को एक होटल का पता दिया। हीर बार बार माहिर की तरफ देख रही थी, जबकि माहिर की नजरें फोन की स्क्रीन पर जमी हुई थीं। माहिर की आंखें शिद्दत जब्त से सुर्ख हो रही थीं, मगर वो जाने कैसे खुद पर जब्त किए बैठा था। ठीक है, फिर मिलते हैं, हीर ने यह कहकर फोन बंद कर दिया और माहिर की तरफ बढ़ा दिया। माहिर हीर के हाथ से फोन लेकर उसकी जानिब देखे बगैर कमरे से निकल गया। हीर उसकी पुश्त को देखकर रह गई। अगले दिन हीर माहिर के साथ गाड़ी में बैठी थी और गाड़ी शहर जाने के रास्ते पर रवां दवां थी। कुछ ही देर बाद वो दोनों मतलूबा होटल के सामने पहुंच चुके थे। तुम जाकर उससे मिल लो, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, फिर हवेली वापस लौटकर हम ये रिश्ता खत्म कर देंगे, माहिर गाड़ी से बाहर देखते हुए हीर से कहने लगा। वो उस रात के बाद से हीर की जानिब देखने से भी इज्तनाब बरत रहा था। जाने क्यों हीर ने यह बात शिद्दत से महसूस की थी। हीर खामोशी से गाड़ी से उतर गई और होटल के अंदर बढ़ गई। होटल के अंदर जाने से पहले उसने पलटकर माहिर को देखा था, मगर माहिर अपनी सीट पर आंखें मूंदे बैठा था। उसका चेहरा हर किस्म के तासुरात से आरी था। कुछ देर बाद हीर एक कोने वाली टेबल पर हारून के सामने बैठी थी, मगर जाने क्यों वो कोई भी खुशी महसूस नहीं कर रही थी। उसने अपना दिल खंगाला तो वहां हारून कहीं नहीं था। दूर दूर तक बस खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। हीर,
तुम जानती भी नहीं हो कि तुम्हारी शादी के बाद मैं कितना टूट गया था। हारून ने अपने चेहरे पर मसनूई उदासी तारी करते हुए कहा। हीर ने होटल के शीशे के पार खड़ी माहिर की गाड़ी की जानिब देखा। माहिर गाड़ी में मौजूद था, वो भी हीर को ही देख रहा था। शायद ये इत्तेफाक था कि हीर और हारून ऐसी जगह बैठे थे जहां से माहिर उन दोनों को आसानी से देख सकता था। हारून काफी देर तक हीर को अपने दिल का हाल सुनाता रहा। हीर खुद में बेचैनी सी महसूस कर रही थी। हीर, मैंने इस होटल में एक कमरा बुक करवाया है। कुछ देर मैं तुम्हारे साथ तन्हा गुजारना चाहता हूं। तुम जानती नहीं हो मैं तुम्हारे लिए कितना तड़पा हूं। आखिरकार हारून अपने मतलब की बात पर आ गया। हारून की बात सुनकर हीर को एकदम धचका सा लगा। वो हैरानगी से हारून को देख रही थी। हारून, ये तुम क्या कह रहे हो? हीर ने बेयकीनी से हारून से पूछा। मैंने ऐसी भी कोई बात नहीं की जिस पर तुम इस तरह से रिएक्ट कर रही हो, हारून ने बेजारी से कहा। हारून, शायद तुम भूल रहे हो मैं अभी भी किसी के निकाह में हूं, हीर ने अटकते हुए कहा। क्या फर्क पड़ता है इस बात से? मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, हारून ने बेपरवाह लहजे में कहा। हीर की आंखों में इस्तेजाब उभरा था। हारून, मैं यहां तुम्हारे लिए आई हूं। हीर को समझ नहीं आया कि वो हारून को कैसे समझाए। जब भी तो कह रहा हूं कुछ हसीन लम्हात मेरे साथ गुजार कर वापस घर चले जाओ। अभी तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मगर जब हालात साजगार होंगे हम जरूर इस बारे में सोचेंगे, हारून ने मायने खेज लहजे में हीर से कहा। हीर को लगा जैसे किसी ने उसे आसमान से धक्का दे दिया हो। सामने बैठा शख्स उसे क्या समझ रहा था? तुम गलत समझ रहे हो। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। हीर ने उसे एक बार फिर से अपनी बात समझाने की कोशिश की। हीर की बात सुनकर हारून का कहकहा गूंजा। तुम एक शादीशुदा लड़की हो, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? हाँ, तुम्हारे साथ कुछ पल जरूर बिता सकता हूं, हारून ने बेपरवाह से लहजे में कहा। उसका सारा जिस्म ठंडा और नीला पड़ गया, जैसे उसे किसी ने जहर दे दिया हो। वो यकदम ही अपनी जगह से उठी और फिर हारून की कोई भी बात सुने बगैर तेजी से बाहर निकली थी कि अगर वो एक पल भी यहां रुकी तो मर जाएगी। वो तेजी से गाड़ी में आकर बैठी थी। माहिर ने चौंक कर उसे देखा। तो बहुत जल्द वापस आ गई थी। मुझे घर जाना है, हीर ने कपकपाते हुए लहजे में कहा। माहिर ने हैरानी से उसकी हालत देखी जो लम्हा लम्हा बिगड़ती जा रही थी, मगर उसने कोई भी सवाल पूछे बगैर गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी हवेली के सामने रुक गई थी। हीर अभी तक सदमे की कैफियत में बैठी थी। मैं चंद दिन के लिए शहर जा रहा हूं, वापस आकर इस रिश्ते को खत्म कर दूंगा, माहिर ने हीर की तरफ देखते अजियत से कहा, मगर हीर ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं थी। हीर गाड़ी से उतरकर अंदर जा चुकी थी। माहिर ने हैरानी से उसकी टूटी बिखरी हालत को देखा, फिर सर झटकते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो आज पूरे एक हफ्ते बाद हवेली वापस लौटा था। उसके लिए यह फैसला करना बहुत मुश्किल था, मगर आखिरकार उसने अपने दिल पर पत्थर रख ही लिया। जिस वक्त वो हवेली पहुंचा असर हो चुकी थी। हवेली के सब मकीन उस वक्त अपने अपने कमरों में मौजूद थे। माहिर सीधा अपने कमरे में गया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही वो दुश्मने जां मौजूद थी, मगर उसकी हालत देखकर वो शशतर रह गया। जिस हीर को वो छोड़ कर गया था, ये वो हीर तो हरगिज नहीं थी। हीर बिस्तर पर लेटी खामोशी से छत को घोर रही थी। उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ गए थे। वो पहले से बेहद कमजोर हो गई थी। माहिर बेसाख्ता आगे बढ़ा। हीर ने आहट पर गर्दन घुमाकर माहिर को देखा और एक झटके से अपनी जगह से उठी। माहिर, आप कहाँ रह गए थे? मुबहम टूटे हुए और बेरब्त अल्फाज उसके मुंह से निकले। तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? माहिर को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था,
मगर हीर अपनी जगह से उठी और माहिर के सीने से सर टिकाकर बिलक बिलक कर रो दी। माहिर पल भर के लिए साकित हुआ था। आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि उसने मुझे क्या कहा, बस मुझे छोड़कर चले गए। आंसुओं में डूबी हुई हीर की आवाज उभरी थी। हीर ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में दबोच लिया था। वो मुझसे कहता है कि वो मेरे साथ कुछ पल बिता सकता है, मगर मुझसे शादी नहीं कर सकता। क्या मैं उसे इतनी गिरी हुई लगती हूं? हीर माहिर से दूर होती मजीद रोने लगी। मैंने आपका दिल दुखाया था, इसी बात की मुझे सजा मिली है। वो शख्स मेरी जात की धज्जियां उड़ा गया। हीर हिस्ट्राई अंदाज में चिल्लाई थी। माहिर की उंगलियों की पोरों पर अब तक हीर का गर्म लम्स मौजूद था। हीर को जाने कितना तेज बुखार था। हीर, हम आराम से भी बात कर सकते हैं। माहिर ने उसे ठंडा करना चाहा। मुझे नफरत महसूस हो रही है खुद से। मैंने आपको कितना पुकारा, मगर आप मेरे पास नहीं आए। मेरा कोई भी नहीं। आप सब लोग मुझे मेरी गलतियों की सजा दे रहे हैं। सबने मुझे तन्हा छोड़ दिया है। हीर जमीन पर बैठकर रोने लगी थी। माहिर के दिल को कुछ हुआ था। वो तो इस लड़की की 1000 गलतियां भी माफ कर सकता था, मगर वो उसे ऐसी टूटी बिखरी हालत में नहीं देख सकता था। माहिर तड़प कर उसकी तरफ बढ़ा। माहिर, मुझे माफ कर दें। मैंने एक गिरे हुए शख्स के लिए आपका दिल दुखाया। मुझे एहसास हो गया है, मुझे उससे मोहब्बत कभी थी ही नहीं। मैं तो बस अपनी आज़ादी का फ़ायदा उठा रही थी। अपनी ज़िद्दी और खुदसर तबीयत की वजह से मजबूर हो गई थी। हीर ने रोते हुए उसके सीने पर सर रख दिया। माहिर ने उसके माथे को छूते हुए देखा तो वो बुरी तरह से तप रही थी। हीर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर माहिर ने उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप करवा दिया। बस, अब खामोश हो जाओ। क्या हालत कर ली है तुमने अपनी? माहिर ने अपने हाथों के प्याले में उसका चेहरा थामते हुए कहा। हीर, तुमसे नादानी हुई है। तुम खरे और खोटे में फर्क नहीं जान सकी। ये तो तय है कि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं, तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मगर ये सब भूलने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। माहिर ने बेबसी से कहा था। हीर उसे देखकर रह गई। मैं चंद माह के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूं। उम्मीद है जब तक मैं आऊंगा सब ठीक हो चुका होगा। माहिर ने उसके बालों में नरमी से हाथ फेरते हुए कहा था। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। माहिर ने मोहब्बत से उसका माथा चूमा था। एक सुकून सा हीर के अंदर उतर गया।